My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing Snap 25 questions from 14 December 2025, slot 1. Start करते हैं सेशन को और we'll be discussing all 20 questions. So bear with me till the end of the session. Start करते हैं. And if you've not already subscribed, make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. And you can also join Telegram channel Mathological or can message me on Telegram at ADITYAKT. So first question of the session: the population of bacteria at a time t is given by the formula p is equal to k into 2 power t by 2. यहाँ पे t हमारा is in hours. If at t is equal to 0, population is equal to 1000, then what will be the population at t is equal to 6 hours? Also find value of k. तो given है p is equal to some constant k into 2 power t by 2, and at t is equal to 0, population is 1000. So put t is equal to 0. At t is equal to 0, p is equal to k into 2 power 0. That is equal to k only. So k will be equal to 1000. And secondly, we need to find out value at t is equal to 6 hours. So put t is equal to 6 and p becomes equal to k, which is 1000 into 2 to the power 6 by 2, यानी 2 क्यूब. तो आंसर आ जाएगा 8000. सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट अवे. ऑप्शन 8000 1000, ऑप्शन डी इज द आंसर. ओके, और ये ऑप्शंस क्रिएट किए हैं मैंने. एग्जाम में ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, बट 8000 1000 डेफिनेटली रहा होगा. 16000 वाला ऑप्शन भी रहा होगा. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So, two students, Kunal and Lokesh, were asked to solve two different systems of linear equations. So, Kunal solved the equations. The first equation was x plus 2y is equal to 11. और second equation थी 2x minus y is equal to 7. Similarly, Lokesh solved two equations. पहला equation दोनों का same था, x plus 2y is equal to 11, and second equation was 2x plus y that is equal to 7. And we need to find out absolute difference between the value of x obtained by Kunal and Lokesh. यानी कि कुणाल लोकेश की जो values of x आएगा उसमें absolute difference कितना था. ठीक है, सो सॉल्व करते हैं फॉर कुणाल फर्स्ट. तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, और हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो y को एलिमिनेट करेंगे. सो x प्लस 2y, तो सेकंड केस में विल मल्टीप्लाइंग द सेकंड इक्वेशन बाई 2. सो दिस बिकम्स 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 2. दिस बिकम्स 4x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 14. x प्लस 2y 11 है, 4x माइनस 2y 14 है. एड दीज टू, x प्लस 4x बिकम्स इक्वल टू 5x, और y से y कैंसिल हो जाएगा, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, और 5x विल इक्वल टू 25, यानी कि x इज इक्वल टू 5 आ गया. Similarly, for Lokesh, we need to eliminate y. So we'll be multiplying this second equation by minus 2. Okay, minus 2 कर देंगे. So this will be minus 4x minus 2y is equal to minus 14. Now add these two equations. X minus 4x becomes minus 3x. 2y से 2y cancel out हो जाएगा. 11 minus 14 will be minus 3. So x will be equal to 1 for Lokesh. For Kunal this is 5. For Lokesh this is 1. डिफरेंस आ गया 5 minus 1, यानी कि 4 का डिफरेंस है. तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इक्वल टू 4. सिंपल क्वेश्चन था. ओके, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. अ पर्सन saves rupees 100 in the first month, rupees 150 in the second month, rupees 200 in the third month, and so on. So what will be the total amount accumulated by him at the end of 12 months? 12 months के एंड में टोटल अमाउंट accumulated क्या होगा? सिंपल सा एक एपी फॉर्म हो रहा है. फर्स्ट वैल्यू 100, सेकेंड वैल्यू 150, थर्ड वैल्यू 200. ठीक है, तो यहाँ से एंड वैल्यू निकालो, लास्ट वैल्यू फॉर द 12th मंथ. मंथ नंबर 1 के लिए वैल्यू अगर 100 है और हमारा एपी बन रहा है जिसका कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 50, तो मंथ नंबर 12 का वैल्यू क्या होगा? दैट विल बी 100 प्लस 12 minus 100 plus 11 into common difference 11 into 50, that will be 550 plus 100 650. 650 फर्स्ट वैल्यू 100 है, लास्ट वैल्यू 650 है. तो सम विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ द वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स. ठीक है, तो या तो एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स कर दो, या कह सकते हो n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. n बाई 2 हमारा आ जाएगा 12 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 650, तो 6 इंटू 750. So that will be equal to 4500 rupees, 4500 rupees. या फिर स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगा देते, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस 1 माइनस 1 टाइम्स. बात एक ही है, अब चाहे 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स लिखो या फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिखो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. The number of people n which is given in thousands using a new app after t months is given by the equation log of n on the base 2 that is equal to 2 plus 2 times log of t on the base 2. Log of n on the base 2, this is equal to 2 plus 2 times log of t on the base 2, and n value is in thousands. How many months will it take for the number of people to reach 64,000? तो अगर 64,000 है और n हमें 1000 में लेना है, यानी l will be equal to 64. तो put n is equal to 64 in this equation. तो log of 64
ऑन द बेस 2 दिस विल बी इक्वल टू 2 टू पावर 6 होता है, लेकिन दिस विल बी इक्वल टू 6. राइट हैंड साइड है हमारा 2 + 2 टाइम्स लॉग ऑफ टी ऑन द बेस 2. तो 6 - 2 बिकम्स इक्वल टू 4. तो 4 आ गया हमारा इक्वल टू 2 टाइम्स लॉग ऑफ टी ऑन द बेस 2. 4/2 आ जाएगा 2. तो इफेक्टिवली वैल्यू आ गया हमारा लॉग ऑफ टी ऑन द बेस 2 इज इक्वल टू 2. 2 टू पावर 2 विल बी इक्वल टू टी 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 विल बी द वैल्यू ऑफ टी. टी विल बी इक्वल टू 4 मंथ्स, क्योंकि वैल्यू हमारी मंथ्स में गिवन है. तो टी विल बी इक्वल टू 4 मंथ्स इन दिस केस. ठीक है, या फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बजाय पहले हम सिंपल कर लेते हैं, सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है. ठीक है, कि log ऑफ 2n log ऑफ n ऑन द बेस 2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस log ऑफ t ऑन द बेस 2. तो सारी वैल्यूज को log ऑफ 2 में बेस 2 में कन्वर्ट कर लें. तो ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है. ठीक है, दिस 2 कैन बी रिटन एज पावर ऑफ t, यानी t स्क्वायर हो जाएगा. तो दिस विल बी log ऑफ n ऑन द बेस 2 दैट इज इक्वल टू log ऑफ t स्क्वायर ऑन द बेस 2 प्लस अभी जो 2 लिखा है इसको भी तुम बेस 2 में कन्वर्ट करोगे, log में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ 2 स्क्वायर ऑन द बेस 2. ठीक है, अब राइट हैंड साइड में log a प्लस log b इज इक्वल log ऑफ ab, यानी log ऑफ 4t स्क्वायर ऑन द बेस 2 दैट इज इक्वल टू log ऑफ n ऑन द बेस 2. अब सारी वैल्यूज हमारी डायरेक्टली कंपेयर हो जाएगा. n इज इक्वल टू 4t स्क्वायर, n इज इक्वल टू 4t स्क्वायर. पुट द वैल्यू n इज इक्वल टू 64. तो 64 इज इक्वल टू 4t स्क्वायर. तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड हेंस t विल बी इक्वल टू 4. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो या तो log में वैल्यू पुट करके निकाल लो, अदरवाइज ये भी तरीका समझ में आना चाहिए. सिंपल है, दोनों बातें एक ही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इन अ ग्रुप was 7:5. When 20 males and 10 females were added to the group, the new ratio of the males to females becomes 13:9. To find that initial total number of people in the group क्या होगा? Initial total number of people in the group क्या होगा? Male and female. Initial ratio is 7:5. 20 males are added and 10 females are added. Final ratio is 13:9. 13:9. तो अगर हम एज्यूम कर लें दिस इज 7x and this is 5x, तो 7x plus 20 divide by 5x plus 10, this is equal to 13/9. 7 into 9 63, 65, यानी कि 2x comes out to be equal to 180 minus 130 50. 2x 50 आ रहा है तो x हमारा हो जाएगा इक्वल टू 25 एंड टोटल पॉपुलेशन वाज इक्वल टू 12x. x 25 है, 12x विल इक्वल टू 300. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 300 इन दिस केस. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. अ स्वीट शॉप ओनर अरेंजेस 91 लड्डूज. टोटल 91 लड्डूज को अरेंज कर रहा है. कैसे अरेंज कर रहा है? टॉप लेयर में 1 लड्डू है, सेकंड लेयर में 4 लड्डूज आर देयर, थर्ड लेयर में 9 लड्डूज आर देयर, यानी 1 4 9 16 एंड सो ऑन. परफेक्ट स्क्वायर में अरेंज कर रहा है इन पिरामिड शेप. ठीक है, कि 1 लड्डू ऑन द टॉप, देन 4 लड्डूज फॉलोड बाय 9 लड्डूज. तो नेक्स्ट विल बी 16. टोटल लड्डूज है उसके पास 91. तो सिंपल वैल्यू है 1 4 9 16. नेक्स्ट विल बी 25 एंड देन नेक्स्ट शुड बी 36. सम कितना आएगा? 36 प्लस 25 61. 77 77 प्लस 14, यस 91 आ रहा है. तो हमारा लास्ट लेयर में नंबर ऑफ लड्डूज विल बी 36. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. अदरवाइज देखते सिग्मा एन स्क्वायर करना है. 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 एंड सो ऑन. तो सिग्मा एन स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है? द फॉर्मूला इज एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6. तो हम इसको इक्वल टू करते हैं 91 के, बट क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सिंपल है तो इतना करने की जरूरत नहीं है. बस कुछ स्टेप्स के बाद में ही आंसर आ रहा है अपना. अगर लंबा प्रोसेस होता तो फिर इक्वेशन बनानी पड़ती. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. तो जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक तो तरीका है जो हम देखेंगे कन्वेंशनल तरीका जैसे सॉल्व करेंगे इसको. ठीक है, बट अदरवाइज बेटर मेथड क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने का? कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग ऑप्शन, सबसे पहले देखो ऑप्शन हमारे हैं 0 1 2 3, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे एक परफेक्ट आंसर आ रहा है हमारा. ऐसा नहीं है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ऑप्शन में अगर गिवन होता तब फिर हमें सोचना पड़ता है कि क्या आंसर डिटरमाइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. आंसर डिपेंड करेगा शायद वैल्यूज पे, अगर कैन नॉट डिटरमाइंड भी ऑप्शन में गिवन है तो. ठीक है, बट यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज अ डेफिनेट आंसर. ठीक है, नाउ दिस भी गिवन नहीं है तो डेफिनेट आंसर है. और जहाँ पे डेफिनेट आंसर है तो यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा टू गेट द आंसर. बस ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रिलेशनशिप है दैट इज इंपॉर्टेंट. यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि जब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज डालेंगे तो वो वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई करना चाहिए इस बात को. ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी वैल्यू डाल दिया, तुमने साइन थीटा 1 ले लिया और कॉस थीटा 1 ले लिया, दैट डज नॉट मेक सेंस. बिकॉज व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 1. ठीक है, तो कोई भी एक वैल्यू हम मान लेंगे फॉर साइन थीटा एंड करस्पॉन्डिंगली कॉस थीटा का वैल्यू हमें मिल जाएगा. या फिर मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, अगर तुम्हें आइडिया है साइन और कॉस का, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा को 0 ले लो.
ये वैल्यूज ले लो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। हालांकि वही इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम भी है कि ये क्वेश्चन लॉजिकली सही नहीं है, बिकॉज डोमेन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मेंशन होना चाहिए था कि मॉड ऑफ साइन थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस थीटा, बिकॉज अगर इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन इन दैट केस डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो हियर, एंड इफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तब ये वाला डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो साइन थीटा मॉड ऑफ साइन थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस थीटा। एनीवे वो मेंशन होना चाहिए था, बट नहीं मेंशन है, क्या कर सकते हैं, हमें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेथड ये होगा कि हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, ठीक है। एक ऑप्शन हो सकता है साइन थीटा को 1 माना, कॉस थीटा को 0 मान लिया, पुट द वैल्यूज। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 यानी 1 क्यूब प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 1 क्यूब माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो वैल्यू हमारा 1 + 1 यानी कि इक्वल टू 2 आ गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द आंसर। दिस इज वन ऑफ द अप्रोचेस। अब कन्वेंशनली देखेंगे तो दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। तो अगर ए इज इक्वल टू साइन थीटा, बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो दिस बिकम्स हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी प्लस ए क्यूब minus b cube upon a minus b, and a cube plus b cube, this is equal to a plus b into a square plus b square minus ab. So since we are dividing a cube plus b cube by a plus b, तो बचेगा हमारा क्या, a square plus b square minus ab, यानी this will be equal to a square plus b square minus ab. Now for the second expression, a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus b square plus ab. तो बचेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नाउ ए बी माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, सो दिस विल बी गेटिंग कैंसल्ड आउट, एंड इफेक्टिवली दिस बिकम्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट सिंस ए हमारा है साइन थीटा, बी है कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा हमारा इक्वल टू 1। दिस विल बी 2 into 1 एंड हेंस इक्वल टू 2। ओके, दिस विल बी इक्वल टू 2 wherever domain is defined. Okay, next question, question number 8. A shopkeeper purchased bananas at the rate of rupees 120 per dozen. He marked up the price by 25%. However, 20% of the bananas got spoiled and had to be thrown away. If he sells the remaining bananas at the marked price, so what is the overall profit or loss percentage? तो परचेज किए थे बनानाज एट सम प्राइस। अब क्या प्राइस था वो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ही नहीं, उसकी कोई हमें सॉल्व करने के लिए जरूरत नहीं है। उसने परचेज किया एट रुपीज़ 120 पर डजन, मार्क्ड अप द प्राइस बाई 25%, जबकि 20% ऑफ द बनानाज गॉट स्पॉइल्ड। इफेक्टिवली 20% यानी 1/5 गॉट स्पॉइल्ड। तो इफ 5 bananas were there in effect, तो out of 5 only 4 he was able to sell, and on 1 he had complete loss. कितना लॉस हुआ, अब स्पॉइल हो गए हैं तो उसमें कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, सो 100% लॉस होगा यहाँ पे। एंड फॉर दीज 4 units ऑफ बनानाज, सिंस ही हैज मार्क्ड अप बाई 25%, प्रॉफिट विल बी 25%। अब चाहे तो वेट एवरेज निकाल लो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो सेम ही था, ठीक है। तो 25% भी सेम कॉस्ट का है, 100% भी सेम कॉस्ट का है, तो यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हो कि 4 बनानास को सेल किया या 4 यूनिट्स बनानास को सेल किया उसने एट 25% प्रॉफिट, और 1 यूनिट को एट 100% लॉस। तो 4 into 25 विद अ पॉजिटिव साइन और प्लस 1 into -100 डिवाइड बाई 4 + 1, यानी 100 - 100 0 आ गया इफेक्टिवली, तो 0%, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस विल बी द आंसर इन दिस केस। ठीक है, अदरवाइज वैल्यूज मान के भी सॉल्व कर सकते थे, कोई वैल्यू मान सकते थे, जरूरी नहीं है कि 120 रुपीज़ पर डजन ही मानना, कुछ भी मान लेते वैल्यू। ये हमारा आंसर जो है परसेंटेज में आना है, वैल्यूज में तो आना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ रेक्टेंगुलर पार्क हैज डायमेंशंस 30 मीटर क्रॉस 20 meters. A well with a radius of 7 meters is dug, located at one of the corners inside the park, and a cement square pedestal of side length 5 meters is built on another corner. So what is the remaining area of the park? On one corner there is a pedestal of size 5 × 5. Total dimensions are 20 and 30 for the park. And on another corner there is a well with a radius of 7 meters. We need the remaining area after these pedestals and wells area is removed. So remaining area will be equal to total area of the park 20 into 30 minus area of the well which is 154. भाई 7 का है तो पाई इंटू 7 स्क्वायर, और अगर रेडियस 7 है तो वहाँ पे वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेशंस कि जब रेडियस 7 होगा तो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 44 और एरिया विल बी इक्वल टू 154। ये वैल्यूज याद रहे तो बेस्ट है, अदरवाइज सॉल्व कर लोगे पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू 7 स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 7 स्क्वायर, तो 22 into 7 यानी 154, और सब्ट्रैक्ट करोगे एडिशनली एरिया ऑफ दिस पोर्शन विच इज 5 into 5 25, तो 600 - 179, आंसर आ जाएगा 421 मीटर स्क्वायर।
Option D will be the answer. 421 meter square. Okay. Next question. Question number 10. Anuj's average monthly expense for the first 3 months of the year is rupees 2700. So for first 3 months, expenses rupees 2700. For next 4 months, the average monthly expense is rupees 2900. And for next 5 months, the monthly expense is 3100 on an average. Total expense यहाँ से निकाल लेंगे. Additionally, his total savings for the year is rupees 4400. So total expense plus total savings will be equal to his total income. और ये इनकम मिलेगा हमें कब का? पूरा एनुअल इनकम 12 मंथ्स का इनकम मिलेगा. हमें चाहिए एवरेज मंथली इनकम, तो विल बी डिवाइडिंग बाई 12. सिंपल सा प्रोसेस है. ठीक है, तो 3 इंटू 2700 दैट विल बी 8100 प्लस 4 इंटू 2900 जो वैल्यू आ जाएगा 11600 प्लस 5 इंटू 3100 जो क्या आ जाएगा हमारा 15500. दिस इज टोटल एक्सपेंसेस प्लस सेविंग्स दैट इज 4400. ये हमारा टोटल इनकम आ गया फॉर 12 मंथ्स एंड देन डिवाइड दिस बाई 12. दिस विल बी आवर आंसर. कैलकुलेशन में बस गलती नहीं होनी चाहिए. तो 11600 11 प्लस 8 19700 35,200 प्लस 4000 तो 39,600 बाई 12. This becomes 3,300 rupees per month. 300 rupees per month will be our answer. ओके. और कैलकुलेशन को जब आसान रखना हो, जब भी कभी ऐसा केस हो हमें एवरेज निकालना है, समअप करना है, तो एक काम ये कर सकते हो. देखो सारी की सारी वैल्यूज क्या है, आसपास ही है. 2700 2900 3100. ठीक है, तो पहले ही 2700 को बाहर निकाल लो कि हर एक महीने का 2700 तो है ही है. ठीक है, हम अल्टीमेटली क्या निकालना है, हमको अल्टीमेटली एवरेज निकालना है. ठीक है, एवरेज निकालना है. तो एवरेज के लिए हमने मान लिया अपना एवरेज 2700 से ऊपर ही होगा. तो 2700 इज द एक्सपेंस फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स. तो एडिशनल कितना है, एडिशनल यहाँ पे 0 वैल्यू है. सेकंड केस में एडिशनल 200 वैल्यू है फॉर ईच मंथ. ठीक है, और थर्ड केस में हमारा एवरेज क्या है 3100 है, जो कि 2700 से 400 ज़्यादा है, तो प्लस 400 हुआ. ओके, तो इफेक्टिवली वैल्यू क्या आ गया 2700 हमने पहले ही निकाल दिया कि इतना तो एवरेज सैलरी हमारी है ही है कम से कम. अब 3 इंटू 0 इसके बाद में जितना डेविएशन है वो देख लो. तो 3 इंटू 0 यानी कि 0 प्लस 4 इंटू 200 जो कि आ जाएगा 800 प्लस 5 इंटू 400 जो कि आ जाएगा 2000. और लास्ट में भूलना नहीं है ये जो वैल्यू 4400 इसको भी ऐड करोगे क्योंकि ये भी तो एक्स्ट्रा है. ठीक है, ये सब ऐड करके डिवाइड बाई 12 कर दोगे, ये एडिशनल ऐड होगा. तो 4400 प्लस 2800 ये वैल्यू आ गया हमारा. एक सेकंड, 4000 2000 6000 7200 बाई 12 यानी कि 600 आ गया. तो 2700 प्लस 600 वैल्यू आ गया 3300. यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहेगी, स्पेशली जब वैल्यूज और भी कॉम्प्लेक्स हो, जहाँ पे कैलकुलेशन करना मुश्किल हो, तो वहाँ पे दिस मेथड इज मच मोर सिंपलर. ओके, ठीक है. तो सम करना हो, सम में भी इसको यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सम में नहीं यूज़ कर सकते. सम में भी सेम लॉजिक रहेगा कि सबको वैल्यूज़ को सिंपल बना के एक साथ मल्टीप्लाई कर लो और फिर बचे हुए वैल्यूज़ को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लो जहाँ पे ज़रूरत पड़े, जहाँ पे लगेगा कि ये मेथड हमें चीज़ें आसान करेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. 10 men can complete a work in 12 days and 12 women can complete the same work in 15 days. Then find number of days in which 6 men and 6 women can complete the same work. 10 men are completing the work in 12 days. तो अगर 10 men कर रहे हैं 12 days में, तो 10 into 12 यानी 120 man days लग रहे हैं, यानी कि 1 man will be completing the work in 120 days. Similarly, 12 women are taking 15 days, तो 1 woman will be taking 12 into 15 180 days. तो यहाँ से क्या हम वर्क नहीं निकाल सकते, वर्क 120 180 का एलसीएम ले लिया, दैट विल बी 360. वर्क हमारा हो गया 360 और एफिशिएंसी 1 मैन बिकम्स इक्वल टू 3, एफिशिएंसी 1 वुमन बिकम्स इक्वल टू 2. तो 6 मैन एंड 6 वुमन, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू टोटल वर्क है हमारा 360 डिवाइडेड बाई 6 मैन विल बी 6 इंटू 3, 6 वुमन विल बी 6 इंटू 2. तो 6 इंटू 3 18 प्लस 12 360 बाई 30. 12 डेज लगेंगे इनको इन टोटल. ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 12 डेज. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A, B, C, D, E, and F are 6 persons. 6 persons. Find the ways to get them seated in a line such that A and B have to be together and C and B should never be together. A और B को साथ में बिठाना है, जिनको साथ में बिठाना है उनको एक यूनिट मान लोगे. ठीक है, और C और D कभी भी साथ में नहीं बैठेंगे, तो C and D should always be separate. तो उनको बाद में सिट कराओगे, जिनको भी सेपरेटली बिठाना है उनको लास्ट में सिट कराओगे, लास्ट में उनकी सीटिंग अरेंजमेंट करोगे, पहले बाकी सबका सीटिंग अरेंजमेंट कर दोगे. तो A and B हैव टू बी टुगेदर.
and E and F are also there. C and D should be seated at last. So there are 3 units as such. अरेंज करने के वेज हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल, बट ए एंड बी कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स, आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल. ठीक है, ये आ गया हमारे अरेंजमेंट फॉर ए बी ई एफ. नाउ लेट अस से ए बी को बिठाया, ई को बिठाया, एफ को बिठाया. अब सी और डी को बिठाना है, बट सी एंड डी शुड नॉट बी टुगेदर, तो दे मस्ट बी बिटवीन ए बी ई एंड एफ. तो यानी कि देयर आर 4 स्पेसेस, जिनमें से किन्हीं 2 स्पेसेस बिठाएंगे, तो सेलेक्ट 2 स्पेसेस आउट ऑफ 4. तो 4C2 वेज में वी कैन सेलेक्ट दोस 2 स्पेसेस और फिर सी और डी को अरेंज कर दोगे, तो इनटू 2 फैक्टोरियल. दिस विल बी आवर आंसर. 6 into 2 into 6 into 2 यानी 12 स्क्वायर विच इज 144 वेज इन टोटल. ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है बात. या फिर ये कर सकते थे, सेकंड मेथड क्या हो सकता था, पहले ए बी को साथ में कर दो, ए एंड बी आर टुगेदर, देन सी डी ई एंड एफ. ठीक है, टोटल केसेस निकाल लो. टोटल केसेस क्या आ जाएंगे हमारे, टोटल केसेस विल बी 5 यूनिट्स 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस माइनस. अब यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे कि सी और डी साथ में रहे होंगे, है कि नहीं, तो सी और डी जहाँ पे साथ में रहे उन केसेस को एलिमिनेट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो. ए बी आर टुगेदर, सी डी आर ऑल्सो टुगेदर, एंड ई एंड एफ. ठीक है, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल यहाँ तो हो ही गया था. हाँ, तो इन दिस केस देर आर 4 यूनिट्स, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल फॉर ए बी एंड 2 फैक्टोरियल फॉर सी डी. सॉल्व कर दो, तो 122 240 minus 96 and hence 144 will be our answer. क्लियर है बात. ठीक है, आंसर आ जाएगा 144. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. इफ HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1800, तो LCM क्या होगा. HCF गिवन है और प्रोडक्ट इज ऑल्सो गिवन, तो LCM क्या होगा. HCF इंटू LCM दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स A इंटू B इफ A एंड B आर द नंबर्स. HCF इज 15, LCM पता नहीं है, and 15 into L, let us say that is equal to product which is 1800, तो L equal to 1800 by 15 which is equal to 120. आंसर हमारा will be option A, 120 in this case. Next question, question number 14. A car traveled 1/3 distance at the speed of 10 km per hour, 1/3 at the speed of 20 and 1/3 at the speed of 60. तो 1/3 1/3 1/3 यानी equal distance at speeds 10 20 and 60 respectively. to find the average speed of the car. ठीक है, तो सबसे इजी तरीका ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि एज्यूम अ वैल्यू दैट इज एलसीएम, एज्यूम अ वैल्यू ऑफ डिस्टेंस दैट इज एलसीएम ऑफ 10 20 एंड 60, और तीनों केसेस में माय डिस्टेंसेस इक्वल है, तो लेट अस एज्यूम कि ऑल 3 डिस्टेंसेस आर 60 60 एंड 60 किलोमीटर्स. अगर डिफरेंट होगी तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको एज्यूम कर लोगे 60 और अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर दोगे बाकी सबको. 60 60 फर्स्ट केस में 10 का स्पीड है, सेकंड केस में 20 का है और थर्ड केस में 60 का है. तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टी बाई टी. टोटल डिस्टेंस कितना है 60 + 60 + 60 दैट इज 180. टोटल टाइम फर्स्ट केस में 60 by 10 6 आवर्स, सेकेंड केस में 60 by 20 3 आवर्स, थर्ड केस में 60 by 60 1 आवर. तो 180 by 10 यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर विल बी आवर आंसर. 18 किलोमीटर पर आवर. सेकेंड मेथड हो सकता है जब डिस्टेंस इक्वल, तो सेकेंड मेथड तभी काम करेगा इफ डिस्टेंस आर इक्वल, तो डायरेक्टली हार्मोनिक मीन निकाल लो. इफ देयर आर 2 स्पीड्स, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 2AB अपॉन A + B. इफ देयर आर 3 स्पीड्स, the speed will be 3ABC upon AB plus BC plus C. Okay. Next question, question 15. What is the unit of 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial and so on till 100 factorial? 1 factorial is equal to 1, 2 factorial is equal to 2, 3 factorial is equal to 6, 4 factorial is equal to 24, 5 factorial is equal to 120, 6 factorial is equal to 720 and so on. बट हमें सबको सम करके क्या चाहिए, अल्टीमेटली वी नीड यूनिट डिजिट ओनली. तो यूनिट डिजिट हमारा कब किन वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, जो वैल्यूज हमारी नॉन जीरो हो, इजंट इट सो. तो फ्रॉम 1 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल वी हैव नॉन जीरो वैल्यूज इन यूनिट डिजिट 1 2 6 एंड 4. बट आफ्टर 5 फैक्टोरियल क्या हो रहा है, 5 फैक्टोरियल वैल्यू हो गया जीरो यूनिट डिजिट पे, 6 फैक्टोरियल जीरो, और इसके बाद में सब पे जीरो ही आने वाला है क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं अल्टीमेटली. तो जीरो पे कितना ही मल्टीप्लाई करो अल्टीमेटली जीरो ही आएगा. तो इसके बाद में द वैल्यूज आर इनकॉन्सिक्वेंशियल, उनसे हमारे यूनिट डिजिट पे फर्क पड़ेगा ही नहीं. तो ओनली कंसर्न इज first 4 values from 1 factorial to 4 factorial. तो 1 2 6 4, our answer will be 6 + 4 + 2 + 1 which is 13. तो ultimately 3 हमारा यूनिट आ जाएगा. आंसर will be option B. Okay. Next question, question number 16. If the point A 1, 2
B 3, 8 and C 7, K, these points are collinear, तो value of K क्या होगा? If the points are collinear, तो value of K क्या होगा? These points are lying on the same line. A 1, 2, B 3, 8 and C 7, K. So one method could be to find out the slope value. ठीक है, स्लोप तो हमारा, क्योंकि ए बी सी आर कोलिनियर, किन्हीं भी दो से स्लोप निकाल लो, दो वैल्यू से. ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू, अगर 2 पॉइंट्स हमें गिवन है x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी को पॉइंट्स लेके स्लोप निकालो. स्लोप क्या आएगा? 8 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1 विच इज इक्वल 6/2, यानी 3 आ गया. और सेकंड केस में निकाल लो बी और सी को पॉइंट्स मान के, पॉइंट्स ऑन द लाइन. तो k माइनस 8 अपॉन 7 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ से k माइनस 8 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4 इंटू 3 12 एंड हेंस k विल इक्वल टू 20. k इज इक्वल टू 20 हमारा क्वेश्चन में आंसर आ गया. ठीक है, ये एक अप्रोच हो सकता है. बट इजियर अप्रोच, और भी इजी अप्रोच क्या होगा कि सिंस ए बी एंड सी आर इन अ लाइन, आर इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ए से बी तक हम जा रहे हैं. ए में एक्स कोऑर्डिनेट पे फोकस करो, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, या फिर वाई कोऑर्डिनेट ही अल्टीमेटली में चाहिए तो वाई कोऑर्डिनेट पे ही फोकस कर लो. एक्स की कोई जरूरत ही नहीं है, एक्स वैल्यू की वैल्यू तो पता ही है, बट हाँ वहीं से तो पता चलेगी वाई की वैल्यू. एनीवे, तो एक्स की वैल्यू हमारी आ रही है 1 3 1 3 एंड 7. एक्स की वैल्यू से ही पता चलेगा हमें अल्टीमेटली कि ए बी से सी तक कितना जाना है. सो फ्रॉम ए टू बी देयर इज अ जंप ऑफ 2 यूनिट्स. 1 से 3 का 2 यूनिट्स का जंप हुआ है, फिर 3 से 7 तक 4 यूनिट्स का जंप हुआ है, डबल जंप हुआ है. सिमिलरली अब वाई कोऑर्डिनेट फोकस करो, तो 2 से 8 तक जंप आया है 6 का, तो अब नेक्स्ट जंप हमारा जस्ट डबल होगा, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट में पहले ए से बी तक जंप आया 2 यूनिट्स का, देन 4 यूनिट्स का. सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट में ए से बी तक जंप आया है 6 यूनिट्स का, तो नेक्स्ट जंप विल बी ऑफ 12 यूनिट्स, यानी 8 + 12, अवर आंसर विल बी 20. ए विल बी इक्वल टू 20. Okay. Next question. Question number 17. The price of petrol has increased by 15%. By what percent should the consumption be reduced to keep the expenditure constant? तो price into consumption that is equal to expenditure, और expenditure अगर सेम रखना है तो price में जिस जैसे इंक्रीज आया है वैसा ही रिवर्स डिक्रीज, वैसे ही डिक्रीज आ जाएगा अगर कंजम्पशन में, तो बात ठीक हो जाएगी. तो प्राइस हैज इंक्रीज बाई 15%, देखिए 3/20 से इंक्रीज किया है. तो इफ इनिशियली प्राइस वॉज 20, तो नाउ द प्राइस इज 23. तो कंजम्पशन में क्या होना चाहिए? अगर कंजम्पशन इनिशियली 23 था तो अब 20 हो जाना चाहिए, तभी तो हमारा प्रोडक्ट सेम आएगा. प्राइस इंटू कंजम्पशन का, तभी तो प्रोडक्ट सेम आएगा कि अगर पहले 460 था तो अब भी 460 रहेगा. ठीक है, तो कंजम्पशन में डिक्रीज आ रहा है कितना का? 23 में 3 का डिक्रीज आना चाहिए. 23 में 3 का डिक्रीज आना चाहिए. 3/23 शुड बी आवर आंसर. इन परसेंटेज दिस विल बी 300/23. 23 1 23 बचा 70, तो रफली 13%, ऑलमोस्ट 13%, थोड़ा सा ज़्यादा 13.04%. ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा. ओके. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18. 100 men are assigned to complete a work in 50 days, but after 40 days only 2/3 of the work is completed. तो 40 days में work done is 2/3 by 100 men. And total 50 days में work was supposed to be completed. How many additional men are needed to complete the remaining work on time? यानी कि in the remaining 10 days we have to complete remaining 1/3 work. Okay. 40 days में वर्क हुआ है 2/3, 10 days में करना है 1/3. तो 40 days में कितना वर्क हुआ है? 40 days में 100 मैंने वर्क किया, तो 40 इंटू 100, दिस इज द वर्क डन, एंड दिस इज एक्चुअली 2/3 वर्क. और सेकंड केस में हम क्या करेंगे? दैट बी 10 days में लेट अस से 100 + m men are needed. 100 + m, दिस विल बी द वर्क डन, एंड दिस इज इक्वल टू 1/3 वर्क. इक्वेट कर दो दोनों को. 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा 2, 2 से बचा ऊपर 20, दिस इज 20 इंटू 100, और फिर 0 से एक और 0 गया 200, यानी 100 + m इज इक्वल टू 200. m comes out to be equal to 100, यानी कि 100 एक्स्ट्रा मैन शुड बी नीडेड. टोटल 200 मैन चाहिए, बट एक्स्ट्रा मैन पूछा है क्वेश्चन में, एंड हेंस आंसर विल बी ऑप्शन बी 100. 100 एक्स्ट्रा मैन विल बी नीडेड इन दिस केस. या दिस प्रॉब्लम वाज सो सिंपल कि 40 डेज में 2/3 वर्क हुआ है बाई 100 में, और अब हमें 10 डेज में चाहिए 1/3 वर्क. ठीक है, तो 100 मैन कैन कंप्लीट 2/3 वर्क इन 40 डेज. तो 1/3 वर्क कितने टाइम में करेंगे? 20 डेज में करेंगे. 1/3 वर्क विल बी डन बाई 100 मैन इन 20 डेज. बट हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने हैं? हाफ है. अगर नंबर ऑफ डेज हाफ है तो रिक्वायरमेंट एफिशिएंसी शुड बी डबल, लेकिन नंबर ऑफ मैन शुड बी डबल्ड, यानी इंस्टेड ऑफ 100 दे शुड बी 200. तो 100 एक्स्ट्रा विल बी नीडेड. For these simple values, 100 extra men will be needed.
ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. Two dice, one red and one blue, are rolled. Find the probability that the sum of the numbers is a prime number and the number on the red die is greater than the number on the blue dice. So red die का number should be greater than blue die का number, and sum of these two, red plus blue die का number, should be a prime number. Prime numbers can be 2 or 3, 5, 7 or 11. So 2 as a sum can be obtained in one ways, 3 can be obtained in 2 ways, 5 can be obtained in 4 ways, 7 in 6 ways, and 11 in 2 ways. सॉरी, 2 एज अ सम कैन बी ऑप्टेन, हाँ वो 1 ही लिखा है, ठीक है. तो 1, 2, 4, 6 एंड 2, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए. ओके, बट कंडीशन क्या है क्वेश्चन में? एक और एडिशनल कंडीशन है कि रेड डाई का नंबर शुड बी ग्रेटर देन ब्लू डाई का नंबर. ठीक है, सो देखो केसेस क्या क्या बनेंगे. व्हेन द सम इज इवन, ठीक है, जब हमारा सम इवन होगा तो वहां पे वन डाई कैन हैव हायर नंबर देन द सेकंड डाई, या हो सकता है कि बोथ डाइस पे इक्वल नंबर हो. इजंट इट सो? अब क्योंकि 2 जब सम आ रहा है हमारा, तो देयर इज ओनली वन केस, एंड दैट केस इज 1 + 1. ठीक है, डेफिनेटली बोथ डाइस रेड एंड ब्लू विल बी हैविंग सेम नंबर, क्योंकि 2 में एक ही केस बन रहा है. 4 होता तो बात अलग होती, 4 में 1 + 3 भी आता, 3 + 1 भी आता, तो 4 में तो केस मिल जाता, बट 2 में ऐसा कोई केस मिलेगा ही नहीं. इजंट इट सो? और जब भी हमारे नंबर्स ऑड होंगे 3, 5, 7, 11, तो इक्वल वाला केस तो मिलना ही नहीं है. ठीक है, बोथ डाइज विल बी हैविंग डिफरेंट नंबर्स, क्योंकि हमारा जो सम है वो ऑड है. तो वेन एवर सम इज ऑड, तो देयर विल बी ओनली 2 केसेस, एंड दोज केसेस विल बी ईदर रेड विल बी ग्रेटर देन ब्लू और ब्लू विल बी ग्रेटर देन रेड. देखिए जो भी केसेस हमारे बनने वाले हैं उनमें से डिवाइडेड बाई 2, हाफ द केसेस विल बी हैविंग रेड ग्रेटर देन ब्लू. यानी कि हमारा काम के केसेस कितने हैं? ओनली दीज केसेस डिवाइडेड बाई 2. यानी कि 4 + 2 6, 6 + 6 12, + 2 14, तो 14/2, यानी कि 7 केसेस आर देयर वेयर रेड डाई का आउटकम इज ग्रेटर देन ब्लू डाई का आउटकम. आउट ऑफ टोटल कितने केसेस होंगे? जबकि फर्स्ट डाई पे 6 ऑप्शन है, सेकंड डाई पे 6 ऑप्शन है, टोटल केसेस 36, और जिसमें कि 7 आर फेवरेबल केसेस. 7 आर फेवरेबल डिवाइडेड बाई 36, दिस विल बी आवर आंसर, 7/36, ऑप्शन बी. अगर क्वेश्चन इंस्टेड होता कि प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता कि रेड इज ग्रेटर देन ब्लू सच दैट रेड प्लस ब्लू इज इक्वल टू प्राइम, ठीक है, तब हमारा टोटल केसेस होते 15, 14 दिस एंड 1 दिस वन, तो टोटल केसेस होते 15 और काम के केसेस होते 7, तो आंसर होता 7/15. इन दैट केस इफ हमें चाहिए होता प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द रेड डाई इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ द ऑन द ब्लू डाई सच दैट सम इज अ प्राइम नंबर, तब 7/15 आंसर होता है. बट यहाँ पे क्योंकि दोनों कंडीशन सारे में सेटिस्फाई करना है, इसलिए 7/36 विल बी आवर आंसर इन दिस केस, ऑप्शन बी विल बी द आंसर. वैल्यूज अगर देखनी भी हो तो जब 3 सम आएगा तो क्या होगा? फर्स्ट में रेड है, सेकंड में ब्लू है, यानी कि केसेस क्या बनेंगे? दिस कैन बी 1 + 2 में, एक सेकंड, 2 + 1, क्योंकि पहले रेड में हाई नंबर चाहिए, तो 2 + 1, ओनली वन केस, क्योंकि 1 + 2 में ऑपोजिट हो जाएगा. और 5 में क्या क्या केसेस बनेंगे? जब सम 5 होगा, सम 5 होगा तो दिस कुड बी 4 + 1 और 3 + 2, 2 केसेस आ गए. जब सम 7 होगा तो दिस कैन बी 6 + 1, 5 + 2 और 4 + 3, 3 केसेस आ गए. जब 11 होगा तो अगेन दिस विल बी 6 + 5, यानी ओनली वाले केस, तो टोटल केसेस आ गए हमारे 3 + 2 + 1 + 1, यानी 7 cases. Okay. Next question, question number 20. In a group of 200 students, 120 play cricket and 90 play football. If 30 students play neither of the two games, then find how many students play both cricket and football. How many play both cricket and football? Total number of students are 200. Total is 200. 120 play cricket. अच्छा, क्रिकेट और फुटबॉल नहीं था एक्चुअल में, कुछ और मेंशन था क्वेश्चन में, तो कमेंट मेंशन कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या मेंशन था. एनीवे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा. फुटबॉल प्लेइंग वर 90 एंड 30 स्टूडेंट्स प्ले नीदर, यानी 30 आर आउटसाइड दीज टू सेट्स. तो रिमेनिंग बचा हमारा 170. 170 स्टूडेंट्स आर प्लेइंग ईदर क्रिकेट और फुटबॉल और बोथ. ठीक है, अगर 120 आर प्लेइंग ईदर क्रिकेट और फुटबॉल और बोथ, तो क्रिकेट के सेट में है 120. इफ क्रिकेट प्लेयर्स आर 120, टोटल क्रिकेट और फुटबॉल प्लेयर्स आर 170, तो 120 के बाहर बचे 50. दीज 50 मस्ट बी प्लेइंग ओनली फुटबॉल, और टोटल फुटबॉल प्लेयर्स आर 90, यानी 40 मस्ट बी दोज प्लेयर्स हु प्ले फुटबॉल एज वेल एज क्रिकेट. और यही क्वेश्चन पूछ रहा है बोथ, तो बोथ का आंसर आ जाएगा 40, ऑप्शन सी. क्या है क्लियर है? आंसर विल बी 40 इन दिस केस.
So these are all the 20 questions from the first shift of 14th December 2025 snap examination. I believe सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, और अगर किसी क्वेश्चन का डाउट रहता है तो कमेंट अबाउट दैट डाउट एंड ऑल्सो गिव अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हें सेशन कैसा लगा. आई नो कि थोड़ा सा डिले हो गया सेशन का सॉल्यूशन में, बट दैट्स हाउ इट इज. चलो इतना ही रखते हैं सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.